Okay. We have left on the Cripps mission. We have done the reasons for the failure of Cripps mission and the reasons why Cripps mission arrived in India. अब क्रिप्स मिशन, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? ठीक है आप लोगों को? जी मैम। ओके। क्रिप्स, अब हम अगर इफ़ वी अगेन रिवाइज द टाइमलाइन, तो हमने स्टार्ट किया था 1939 से। अब्दुल अहद, मेरी आवाज़ आ रही है बेटे? जी मिस, थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है, शायद मेरे नेटवर्क का मसला है। मैं वही इसी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमजा, इट्स फाइन फॉर यू? जी मैम। ठीक है अब्दुल अहद, आई थिंक देन इट इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। जी मिस। चले, हम 1939 वी हैव डन डे ऑफ डिलीवरेंस, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स. After that we have done 1940s event, that is Lahore resolution. Then in 1942 we have two main events. One was the Cripps mission and the other one is Quit India resolution. Quit, what does quit mean? To finish, रैप अप करना, ख़त्म करना. अब इंडियंस, स्पेशली गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, they were launching their movement that was called Quit India Resolution or Quit India Movement, in which उनका पर्पस जो था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश शुड क्विट फ्रॉम इंडिया राइट नाउ. बिकॉज आपको पता है कि इस टाइम पे जो जापानीज इन्वेजन ऑफ इंडिया थी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था विच became a reason for Quit India movement. Because you know, Japanese, they were advancing towards the subcontinent parts, towards South Asian parts. So British government at that time, it was not successful to protect India, and it was a question on British government, which led to a sense of insecurity in Indians. That's why Gandhi argued, he suggested that British should quit from India. He argued that if British left India, देखिए जापानीज इन्वेड क्यों कर रहे थे, क्यों यहां पर नीचे की तरफ आ रहे थे वो? बिकॉज ब्रिटिश वर द पार्ट ऑफ दैट वॉर. इंडियंस की कोई लड़ाई नहीं थी इसमें. ब्रिटिश वर द मास्टर्स ऑफ दिस लैंड. दैट्स वाई इनडायरेक्टली ये एरिया आपका जो था वो वॉर का पार्ट था. गांधी का ये कहना था कि इफ ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर बी द रूलर्स, द मास्टर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो हमें जापानीज इन्वेजन का कोई थ्रेट ही नहीं होगा, फिर तो जापानीज आएंगे नहीं हमारी तरफ. दैट्स वाई क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज स्टार्टेड. एक रीजन आपकी ये हो गई. द सेकेंड रीजन इस मूवमेंट की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, असल मकसद तो इसका क्या था? टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश. अब behind this there were several reasons. One was the Japanese invasion, second was the British government's failure to grant more power to the Indians through Cripps mission, which led to widespread protests and widespread dissatisfaction among Indians. All right. फिर during the Second World War, Indians contributed uh, on the side of British in war efforts, including they provided troops, they provided financial support, and supplies of all the basic necessities. But British government, on the other hand, was not providing sufficient compensation to Indians, which led towards poverty, shortage of food, sufferings. So
Quit India movement was in part a response to this economic exploitation and wartime suffering. 3 reasons हमने पढ़ी हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। जी, कौन कौन सी रीजंस पढ़ी हैं हमने अभी? हमजा, क्या डिस्कस किया है कि गांधी ने क्यों क्विट इंडिया रेजोल्यूशन स्टार्ट की थी? क्योंकि Indians were going through a lot of troubles, and the British were not providing enough resources to the Indians, and that's why Nehru went against the British for quit India resolution. Sorry, Gandhi went against it. Yes, British and for quit India. other reason what we have discussed in the start. Just more about Japanese invasion to cause. Yes, very good, very good. और अगर ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे तो there would be no reason for the Japanese invasion. Yes, very good. अब अगर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए फॉर कैम्ब्रिज एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए फॉर एडेक्सल, तो इन दिस वे विद द डेवलपमेंट ऑफ 3 पॉइंट्स, one is dissatisfaction of Indians, one reason is the Japanese invasion, and third reason is economic sufferings. All right, इन तीनों पॉइंट्स को आप डेवलप करके अपना 7 या 6 मार्क्स का आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इवेंट, दैट इज 1944। देयर वाज नो इवेंट इन 1943, बस जो चीजें चल रही थी वही ऑलरेडी चल रही थी। देखिए, इंस्टेबिलिटी इन सब कॉन्टिनेंट, और डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर सेल्फ रूल एंड डिमांड ऑफ पाकिस्तान सेपरेट स्टेट बाय द मुस्लिम लीग, ये चीजें कंटिन्यू थी। अब इट वाज ऑब्वियस, ब्रिटिश एटीट्यूड वाज शोइंग कि वो अब यहां से चले जाएंगे। दैट्स व्हाई गांधी सजेस्टेड अ मीटिंग विद कायदे आजम। He wrote letters to Quaid-e-Azam to meet him. Quaid-e-Azam accepted that. अब मेन पर्पस गांधी की इस टॉक का क्या था? इट वॉज ऑब्वियस दैट ब्रिटिश जो है वो अपना कॉलोनियल सिस्टम एंड करने जा रहे हैं। उनके एटीट्यूड से ये चीज नजर आ रही थी। कांग्रेस को ये लगता था कि अगर हमें मुस्लिम लीग की सपोर्ट मिल जाए तो ब्रिटिश से आजादी लेने में हम कामयाब हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी दोनों कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग कर देंगी और ब्रिटिश के ऊपर एक प्रेशर हो जाएगा। अब गांधी का ये कहना था कि हम मिलके पहले ब्रिटिश से आजादी ले लें और उसके बाद फिर वी विल सी द मैटर ऑफ पार्टीशन। ये तो घर की बात है, हम फिर बाद में देख लेंगे। कायदे-आज़म इस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे बिकॉज ही न्यू कि गांधी या कांग्रेस जो है वो ऐसी पार्टी नहीं है जिन पर हम रिलाय कर सकें। हमें जो कुछ भी करना है वी हैव टू डू इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश। तो कायदे-आज़म का क्या कहना था कि फर्स्ट पार्टीशन देन इंडिपेंडेंस, बट गांधी वॉज स्ट्रिक्ट ऑन हिज पॉइंट। उसके बाद गांधी चाहता था कि जो इसमें आपकी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हो। बट कायदे-आज़म यहां पर जो थे ही वॉज इन फेवर ऑफ फेडरेशन। Both of the leaders, they were disagreed on most of the points. They were disagreed on the decisions how on the future of India. अब जिन्ना यहां पर सेपरेट होमलैंड की बात कर रहे थे और गांधी जो था वो यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहा था। ठीक है, और जिन्ना वॉज नॉट बिलीविंग ऑन गांधी सिंसियरिटी कि हम जो है इफ गांधी इज सेइंग
कि बाद में पार्टीशन जो है उसका मसला हम खुद सॉल्व कर लेंगे, तो कायदे आज़म इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो दिस कॉज्ड अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन टू लीडर्स। गॉट इट। अगला, अब जो फंडामेंटल रीज़न थी वो ये थी कि कायदे आज़म जो भी बात कर रहे थे, ही वॉज टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थेरी। ठीक है, एंड टू नेशन थेरी के बेस पे ही वॉज डिमांडिंग फॉर सेपरेट होमलैंड। अब गांधी टू नेशन थेरी का जो आइडिया है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो दिस एग्रीमेंट अगेन इट मेड इम्पॉसिबल फॉर द टू लीडर्स टू फाइंड एनी कॉमन ग्राउंड। all right, but due to these reasons, due to these all dissatisfactions and disagreements, gandhi jina talks were failed. आपको अगर क्वेश्चन आता है कैम्ब्रिज में गांधी जिना टॉक्स में से, तो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए व्हाट वर गांधी जिना टॉक्स, तो सिंपल यू वुड बी राइटिंग दैट गांधी रोट अ लेटर टू कायदे आजम टू मीट हिम टू डिस्कस सब कॉन्टिनेंट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड टू ब्रिंग सम सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स। और उसके बाद फिर आप इसके पॉइंट्स बता दोगे, एंड देन यू विल टेल दैट दीज टॉक्स वर फेल्ड विदाउट any fruitful results. उसके बाद आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है वाई गांधी जिना टॉक्स वर फेल्ड। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन ये जो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बाय राइटिंग दीज 3 पॉइंट्स यू कैन राइट एन आंसर ऑफ 7 मार्क्स। कमिंग टूवर्ड्स एडेक्सल, एडेक्सल में अब इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, ए पार्ट क्वेश्चन दैट इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका ईयर आ सकता है, ठीक है, आइडेंटिफाई द ईयर व्हेन गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई टू, बी पार्ट क्वेश्चन अगर आता है तो स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गांधी जिना टॉक्स। और उसके बाद इफ सी पार्ट क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक, तो वो आपका हो सकता है वाई गांधी जिना टॉक्स वर फेल्ड एंड वाई गांधी जिना टॉक्स वर इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखें कि गांधी suggested that out of 6 provinces demanded by the Muslim League for Pakistan, 3 were fully Muslim majority areas, so could be directly added to Pakistan, whereas to other 3 जिसके अंदर पंजाब, बंगाल, असम आ रहे थे, they were partially Muslims, so they could be included in Pakistan after their communal division. Jinnah rejected this, but Gandhi, for the first time, indirectly accepted the proposals on Jinnah's mission for a separate homeland. So it means कि गांधी जिन्ना के ये जो डिसएग्रीमेंट्स थे, it led towards the creation of Pakistan. Then Gandhi proposed to Jinnah that until the departure of the British, Congress and Muslim League should work first for general independence. ठीक है, कि पहले हम मिलके इंडिपेंडेंस के लिए लड़ें और उसके बाद फिर हम पार्टीशन को देखें। बट जिन्ना रिजेक्टेड दिस प्रपोजल बिकॉज ही न्यू दैट इंडिपेंडेंस वुड स्टिल नॉट बी गिवन बाय कांग्रेस इवन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। और उसको लग रहा था गांधी को यहां पर कि अगर इफ मुस्लिम लीग विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। तो इट मीन्स दैट इट शोड द स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, देन इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि जिन्ना ने इन टॉक्स को बड़ा ही एक अच्छे तरीके से हैंडल किया बिकॉज ही गॉट द कनिंगनेस एंड हिपोक्रेसी ऑफ गांधी एंड ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, ड्यू टू विच मुस्लिम लीग की पोजीशन इंप्रूव हुई। ठीक है, एंड मुस्लिम्स गेव देयर फुल सपोर्ट इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। गॉट इट। सो 1942 में अभी हमने पढ़ा है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन क्या थी, क्या इसकी रीजंस थी, इसकी डेट आपको आ सकती है ए पार्ट क्वेश्चन के लिए, और इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं फॉर बी पार्ट क्वेश्चन।
अब ऑब्जेक्टिव्स में आप एक इसमें वो जापानीज इन्वेजन वाला लिख देंगे, ठीक है, कि इट्स एम वाज टू क्विट द Japanese सिस्टम ऑफ colonial system. ब्रिटिश, ठीक है। और दूसरा क्या था, टू गेट मोर कंपेंसेशंस इन द गवर्नमेंट। और उसके बाद आप अगर देख लें तो आप इसकी रीजंस बता सकते हैं 7 मार्क्स के लिए। फिर वाई गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। वाई गांधी जिना टॉक्स वर फेल्ड, एक ये क्वेश्चन आ सकता है अगेन फॉर 7 मार्क्स। एंड वन क्वेश्चन कैन कम दैट इज वाई वर द गांधी जिना टॉक्स इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सो अभी तक हम 1944 तक पहुंचे हैं। कमिंग टूवर्ड्स 1945, 1945 में हमारे पास थी सिमला कॉन्फ्रेंस एंड द वेवल प्लान। लॉर्ड वेवल ने अपना एक प्लान दिया, उस प्लान को फिर सिमला कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। फॉर एडेक्सल स्टूडेंट्स इसकी डेट आपको आ सकती है फॉर ए पार्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो लॉर्ड था उसका नाम आ सकता है आपको ए पार्ट क्वेश्चन। एंड फॉर बी पार्ट क्वेश्चन स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिमला कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द वेवल प्लान, ठीक है। क्या वेवल प्लान में क्या प्रपोज किया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट, अ टेम्पररी गवर्नमेंट, ठीक है, एंड टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो ये आपको बी पार्ट क्वेश्चन आ सकता है। देन कमिंग टूवर्ड्स द सी पार्ट क्वेश्चन ऑफ एडेक्सल एंड बी पार्ट क्वेश्चन ऑफ कैम्ब्रिज, आपका क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ सिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि कांग्रेस जो थी वो ये चाहती थी कि वो, बिकॉज कांग्रेस ये कहती थी कि कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ ऑल इंडियंस, दैट्स वाई मुसलमानों की फेवर हासिल करने के लिए कांग्रेस ये चाहती थी कि इट शुड नॉमिनेट एटलीस्ट 1 मुस्लिम मेंबर इन द प्रपोज्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, because they wanted to represent Muslims too. बट दिस वॉज रिजेक्टेड बाय द जिना। जिना ने क्या कहा कि जितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दे वुड बी इलेक्टेड ओनली थ्रू मुस्लिम लीग्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ड्यू टू दिस डेडलॉक बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज दिस कॉन्फ्रेंस वॉज फेल्ड। अब वेवल क्या चाहता था, वेवल ये चाहता था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स हो, but Jinnah rejected these proposals. He argued that this type of representation cannot provide a proper safeguard for Muslim interests. ठीक है, एज ऑल द जितनी भी आपकी छोटी कास्ट थी, सिक्स थे who would take the sides of Hindus, और इस तरह से मुस्लिम राइट्स जो थे दे वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये दिस कॉन्फ्रेंस इट लैक्ड ट्रस्ट, सिंसियरिटी, यूनिटी among the participants, especially Indian National Congress and Muslim League. So this Simla conference was failed, but it was very important in the creation of Pakistan because it demonstrated the British government's recognition of Muslim League's importance. क्योंकि interim government में they have given equal representation to Muslims. Okay? फिर अगर हम देखें अगला पॉइंट अपना कि क्यों ये इंपॉर्टेंट थी, तो जिना आपको पता है हर चीज को, जैसे उन्होंने गांधी जिना टॉक्स को हैंडल किया, उन्होंने सिमला कॉन्फ्रेंस को भी बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, ठीक है। उन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से
इलेक्ट हों. Okay, so it highlighted the deep-seated differences between Indian National Congress and the Muslim League. So this conference was failed to produce an agreement paving the way for the eventual partition of India. जी समझ लग गई. तो शिमला कॉन्फ्रेंस पे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो फॉर कैम्ब्रिज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट वाज द वेवल प्लान. आपको इसके सारी जो इंटरम गवर्नमेंट है और जो रिप्रेजेंटेशन है आपको इस बात को इसके अंदर लिखना होगा, इसके पॉइंट्स को लिखना होगा. एंड 1 पैराग्राफ विल कवर योर होल क्वेश्चन. फॉर एडेक्सल ए पार्ट क्वेश्चन शिमला कॉन्फ्रेंस की डेट आ सकती है आपको और इसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है एंड व्हाई इट वाज फेल्ड. दैट इज फॉर सी पार्ट क्वेश्चन एडेक्सल. और कैम्ब्रिज का ये बी पार्ट क्वेश्चन होगा फॉर 7 मार्क्स. कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इवेंट अगेन 1945 का इवेंट था. देखें आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि एन इंटरम गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड. फॉर दैट इंटरम गवर्नमेंट 1945 टू 1946 का इलेक्शन हुआ. एंड यू नो इन दिस इलेक्शन Muslims won almost 80%, 87% of the total Muslim seats. ऐसा ही है ना? क्यों ज़ारा? 87% seats थी ना? Yes, ma'am. And total कितनी seats थी? 496. Out of 496, how many seats were won by Muslims? 446. तो ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे मुस्लिम लीग के लिए ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे. मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स के साथ विन किया. ठीक है. और दिस विक्ट्री इट शोड द स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम लीग. और मुस्लिम लीग गॉट overwhelming support. All right, or eventually led to the separation of subcontinent. This election was in favor of Muslim League. तो आप ये देख सकते हैं कि it was a crucial development between the adoption of the Lahore Resolution, which was passed in 1940. Okay, so this was a significant step in the establishment of Pakistan, the victory of Muslim League in 1945 to 46 election. And this election results in the shift of a political landscape of the Indian subcontinent. Congress जो थी, now Congress was going to acknowledge Muslim League's authority as a representative of majority of the Indian Muslims, because before that Indian National Congress जो थी वो ऑल इंडियन पार्टी अपने आप को अभी भी वो ऑल इंडियन पार्टी ही कंसीडर कर रही है. लेकिन अब उनको एटलीस्ट ये रियलाइज हो गया था कि इंडियन मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करने वाली जो पार्टी है इट इज द मुस्लिम लीग. तो दिस सपोर्ट for the Muslim League, it made it clear that the demand for Pakistan could no longer be resisted or delayed. All right? अब आप देखिए कि 1937 का इलेक्शन इससे पहले हुआ था. In 1937 election, Muslims were not victorious. Congress won this election. And due to that, Congress rule हमें फेस करना पड़ा था. But now, Muslim League won majority of the Muslim seats because of their strong campaign. They toured to all parts of India. Okay, और जिना की जो contribution था in this campaign, it was significant.
अब देखें, लाहौर रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी इस टाइम पे, 1940 के बाद का ये टाइम पीरियड है. एंड नाउ मुस्लिम्स दे हैड अ क्लियर मैनिफेस्टो. ठीक है, उनके पास अब स्लोगन था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. उनके पास अब एम था फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. सो दिस encouraged the Muslim to fight for their rights and interests. That's why मुस्लिम लीग वॉज विक्टोरियस. एक रीज़न हमने ये पढ़ी कि उनकी कैंपेन अब स्ट्रांग हो गई थी पहले से, और 1937 के इलेक्शन से उन्होंने बहुत सीखा था. और जिन्ना की लीडरशिप ने अब मुसलमानों को और भी, मुस्लिम लीग को स्पेशली, और भी स्ट्रांग कर दिया था. अब उनके पास सेकंड पॉइंट जो होगा, इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि मुस्लिम लीग के पास अब क्लियर ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, स्पेशली आफ्टर लाहौर रेजोल्यूशन. ठीक है. और दूसरी तरफ आप देखें तो कांग्रेस, ऑल्दो कांग्रेस एक स्ट्रांग पार्टी थी, मुस्लिम लीग की मेन राइवल तो कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर अब काफी इंटरनल डिविजन्स हो चुकी थी. ठीक है. तो दिस क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मुस्लिम लीग टू विन देयर स्पोर्ट. सो 1945 में हमने सिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेवल प्लान पढ़ा. वी हैव डिस्कस दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन कैम्ब्रिज एंड इन एडेक्सल कैन कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स. After that, we have done elections. We have done the results of the election, and then victory of the Muslim League, reasons for that victory. अब इस रीजन पे भी आपको 7 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. 7 मार्क्स फॉर कैम्ब्रिज एंड 6 मार्क्स फॉर एडेक्सल, IGCSE एडेक्सल. ठीक है. और वाई द जनरल इलेक्शन इन सब कॉन्टिनेंट वॉज सो सिग्निफिकेंट. 1945 का जो जनरल इलेक्शन था, इसको भी हमने डिस्कस किया है. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको 6 या 7 मार्क्स के लिए आ सकते हैं. आपने फिर अगेन, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, फॉर 6 मार्क्स और 7 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू राइट 3 वेल डेवलप्ड पॉइंट्स, जो भी है. ज़्यादातर ये रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. अब उसके बाद अगला जो हमारा इवेंट आता है, अगेन 1946 का इवेंट है, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है. अब कैबिनेट मिशन प्लान क्यों आया इंडिया में, क्यों इंट्रोड्यूस इसको करवाया गया, था क्या कैबिनेट मिशन प्लान? हाँ, it was again an attempt by the British to bring stability, to introduce some reforms. Why? Because अब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे, वो आपको पता है पिछले कितने 2-3 डेकेड्स से तो ये अब सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस. और अभी जो लास्ट ये वाला डेकेड जो चल रहा था रिसेंट, इसके अंदर मुस्लिम लीग वाज आल्सो डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान. ठीक है. तो ये जो इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, ये जो सेल्फ रूल की डिमांड थी, ये अब वोकल होती जा रही थी. तो इट मेड इट क्लियर फॉर द ब्रिटिश कि वो ज़्यादा देर तक अपना रूल अब इंडिया में मेंटेन नहीं कर सकते बाय फोर्स. सो दे वर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम न्यू रूल्स, कि हो सकता है अभी भी कुछ ना कुछ जो है वो हालात कंट्रोल में आ जाए. फिर फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, वो अब एंड हो चुकी थी. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई और 1945 तक चली. अब इसने कुछ ना ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी चेंज कर दिया था. अब इस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स जो थे, दे emerged एज सुपर पावर्स. और दोनों कंट्रीज जो थे वो दे एडवोकेटेड फॉर डीकोलोनाइजेशन. और ये जो इंटरनेशनल प्रेशर था,
ये ब्रिटिश के लिए बहुत डिफिकल्ट था टू जस्टिफाई, टू कंट्रोल, टू कंटिन्यू इट्स रूल ओवर इंडिया. तो कैबिनेट मिशन प्लान, it was, very important, aiming to create a federal structure for India for a peaceful transition to independence. Okay, but the points which here under cabinet mission plan were introduced, they were again criticized, they were dropped, they were failed. मुस्लिम लीग इस वक्त कोई बात नहीं सुन रही थी एक्सेप्ट द सेपरेट होमलैंड. And this plan, it proposed a federal form for India, federal form of government for India. बट यहां पर मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट स्टेट की, वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी. तो कायदे आजम क्या कहते थे कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो एक मॉकरी है, जस्ट एक शैडो है. इन रियलिटी दिस इज नथिंग. एंड दिस इज अ मॉकरी ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, बिकॉज यहां पर सेपरेट होमलैंड का कोई पॉइंट नहीं था. दे वर नॉट कंसीडरिंग इट. That's why it was criticized by the Muslim League. मेरी आवाज ठीक आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. second reason why cabinet mission plan was dropped or failed or criticized. इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड जो थी वो क्या थी? सेल्फ रूल. ठीक है, लेकिन यहां पर लिमिटेशंस थी पावर्स में. तो नेहरू was also not accepting these proposals because they did not, the Congress, meet for a strong central government, because they were talking here about a federal structure in India, to impose a federal structure in India. Then again अगली जो रीजन थी इसकी फेलियर की, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्पोर्ट के रिजल्ट में ब्रिटिश ने ग्रांट करनी थी टू द इंडियंस, वो उसमें दे वर फेल्ड टू ग्रांट ऑल दोस कंसेशंस. द गवर्नमेंट वाज अनविलिंग टू इम्पोज द प्लान ऑन इंडिया, and it ultimately decided to transfer the power to Indian hands. ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डिसीजन था पावर को ट्रांसफर करने का, वो ये श्योर कर रहा था कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है, इट वाज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द प्लान. अब यहां पर ये कैबिनेट मिशन प्लान हुआ 1946 में. तो जिना रियलाइज्ड कि लेटर और सूनर ब्रिटिश विल डिपार्ट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज द राइट टाइम कि हम अपनी जो सॉलिडेरिटी है, अपनी यूनिटी को शो करें ब्रिटिश पे, ताकि इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन भी हो. क्योंकि खाली इंडिपेंडेंस का तो फायदा नहीं था. ब्रिटिश से हमें आज़ादी मिलनी थी तो हम स्लेवरी में चले जाना था हिंदूज के, बिकॉज दे वर इन मेजोरिटी. दैट्स वाई गांधी जो था वो गांधी जिना टॉक्स में भी ही वाज एडवोकेटिंग फॉर द पावर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिना was demanding for separate homeland since 1940. और in August 16, 1946, on the suggestion of Quaid-e-Azam, Muslim League started peaceful protests for the demand of separate homeland. और ये जो फिर पीसफुल प्रोटेस्ट थे, they turned into violence with clashes between Hindus and Muslims and widespread destruction of property, and it led towards the Great Calcutta killing. ठीक है, और ये जो आपका डायरेक्ट एक्शन डे का एक्चुअली पर्पस ये नहीं था कि वायलेंस हो,
इसका मकसद था अपनी स्ट्रेंथ को शो करना, अपने आप को एक अलग कम्युनिटी मनवाना और पार्टीशन के लिए ब्रिटिश को एग्री करना। बट दिस कम्युनल वायलेंस had a profound impact on the future of India. It created an atmosphere of fear and mistrust between Hindus and Muslims, making it increasingly difficult to find a compromise on the issue of Pakistan. All right? तो एक्चुअली डायरेक्ट एक्शन डे अपनी सॉलिडेरिटी को शो करने के लिए था, बट व्हेन इट टर्न्ड इनटू वायलेंस तो ये भी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रीज़न बन गया। हमने वो क्वेश्चन किया था ना कि फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, कंट्रीब्यूशन ऑफ जिन्ना वाज द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। फिर एक क्वेश्चन हमने किया था, partition was took place because British wanted to do so. तो इसके अंदर भी we have compared different events. ठीक है, तो हमने हर इवेंट का इम्पैक्ट लिखा था उसके अंदर कि हाउ दैट इवेंट इट लेड टू वर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब अगर आप डायरेक्ट एक्शन डे का इम्पैक्ट देखो तो ये वायलेंस जो थी इट शोड कि हिंदूज और मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं रह सकते, एंड ब्रिटिश नाउ दे वर फोर्स्ड टू डिसाइड समथिंग अबाउट पार्टीशन। देखे ना, when Muslims observe direct action day to show their strength, to show their feelings for Pakistan, जिसके अंदर हमने क्या करना था, we were going to pressurize the British and the Hindus to accept the demand of partition. Although हमारी ये जो demonstrations थी ये peaceful demonstrations थी, but Hindu-Muslim conflicts they led to Calcutta killings. When British saw all these things, they realized that these two communities, Hindus and Muslims, they could not live peacefully. And then they decided that partition would be necessary. All right? So in that way, Direct Action Day is very, very important for the creation of Pakistan. ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी हमने देखा था जिसके अंदर आपको हिंट्स में जो एग्जामिनर ने पॉइंट दिए हुए थे, यू मे इंक्लूड फॉलोइंग, उसके अंदर आपको डायरेक्ट एक्शन दे दिया हुआ था। तो हाउ डायरेक्ट एक्शन डे इट लेड टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। These were peaceful demonstrations to show Muslim strength and Muslim feelings for Pakistan, but they turned violent and resulted in Calcutta killings. And this thing forced the British, it made the British realize the importance of partition. Got it? जी बच्चों, समझ लग रही है? जो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, डायरेक्ट एक्शन डे में बेसिकली जो 4000 पीपल मारे गए थे, ये सिविल डिसोबीडियंस की वजह से हुए या फिर किसी अथॉरिटी ने इन बंदों को मारा था, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश या इंडियंस की तरफ से? ये बेटे हिंदू मुस्लिम जो वायलेंस राइवलरी थी, वजह से, हिंदू मुस्लिम राइवलरी की वजह से। ठीक। ओके, इफ वी लुक इनटू द नेक्स्ट इवेंट, तो नेक्स्ट इवेंट हमारा आता है फिर 3 जून प्लान। क्या था 3 जून प्लान? Can anyone tell me the 3 June plan? 3 जून प्लान बेसिकली एक फाइनल प्लान था जो ब्रिटिश ने To transfer the power. This plan provided a framework for the transfer of power from British colonial rule to the newly formed nations of India and Pakistan. ठीक है, जिसके अंदर एक क्लियर टाइमलाइन मेंशन की गई थी इंडिपेंडेंस की, 15 अगस्त 1947,
ठीक है, जिसको सेट किया गया था एज अ डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पावर। ओके, तो 3 जून प्लान का एम क्या था? कम्युनल टेंशंस को कम करना, कॉलोनियल रूल को एंड करना और पार्टीशन करना बाय मेकिंग अ न्यू कंट्री पाकिस्तान। ओके, तो अब आप अगर ये देखें कि 3 जून प्लान क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पार्टीशन होने जा रही थी, इंडिपेंडेंस मिलने जा रही थी, British were going to grant dominion status for both of the communities to Hindus and Muslims. Hindus in India and Muslims in a new country, Pakistan. They were addressing the communal tensions. They were going to transfer the power. That's why 3rd June plan was so important. These are the 3 points which you are going to discuss in 7 marks or 6 marks question. ठीक है, ये नोट्स इंशाल्लाह आज मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। they are complete with all the 7 marks question, ठीक है, and if you learn these 7 marks question very well तो आपको इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड दीज 7 मार्क्स क्वेश्चंस दे आर सो वेल डेवलप्ड विद ऑल द इम्पैक्ट्स कि अगर आपको 14 या 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको अपनी टाइमलाइन का पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपको किस टाइमलाइन में से क्वेश्चन दे रहा है, और यही 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके जो भी रिलेटेड इवेंट्स होंगे उस क्वेश्चन से आप इनको अगर कंबाइन करके लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल इफ एग्जामिनर आस्क यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम 1927 to 1935 was गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, तो आप को जब तक सारे इवेंट्स के इम्पैक्ट्स नहीं पता होंगे, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स नहीं पता होंगे, हाउ विल यू बी एबल टू राइट दैट विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दीज 7 मार्क्स क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन दे आर गिविंग यू कंप्लीट डिटेल। By learning these 7 marks questions, you would be able to attempt all the questions in paper. ठीक है, तो इनशाला आई विल बी शेयरिंग इट बाय टुडे और टुमारो। अब इसके बाद 1946 का एक और इवेंट्स था जिसमें आपकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी वो फेल हो गई थी। क्यों हुई थी? डिसएग्रीमेंट अगेन, ये वही क्वेश्चन है जो आपका वो सिमला कॉन्फ्रेंस वाला था। तो ये क्योंकि एडेक्सल के सिलेबस में सेपरेटली लिखा हुआ था कि फेलियर ऑफ द एग्जेक्टिव काउंसिल्स, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को भी यहाँ पर ऐड किया है। कैम्ब्रिज के लिए इसको लर्न करना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन एडेक्सल के बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को लाजमी लर्न करें। एक्सप्लेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स इन 1946। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं अगेन, lack of cooperation between Congress and Muslim League, disagreement over representation and power sharing, British government's lack of clear commitment. Okay, that was all about you know all these things which are related to these chapters. अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन एक आ जाता है वो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है रैडक्लिफ अवार्ड। रैडक्लिफ अवार्ड क्या था एक्चुअली? हाँ, व्हाट वाज रैडक्लिफ अवार्ड? कैन एनीवन टेल मी? दिस बाउंड्री कमीशन था जिनको Yes. जिनको हेड सर साइरन रेडक्लिफ ने किया था। हाँ माउंट बेटन ने इनको अपॉइंट किया था जी, बट और इन्होंने many of the Muslims and Jinnah they were saying that this Redcliffe Award was unjust because many of the areas which were previously decided to hand over to Pakistan they assigned in this Radcliffe Award to India. तो इसलिए ये लग रहा था कि दिस अवार्ड इज बायस्ड टूवर्ड्स इंडियंस, बिकॉज आप अगर देखें इसमें तो जो आपका फिरोजपुर का एरिया था, आपका गुरदासपुर का एरिया था, इट वाज गिवन टू इंडिया, और गुरदासपुर और फिरोजपुर को दे के
हमेशा के लिए कश्मीर इशू को एज अ प्रॉब्लम उसको रहने दिया, जो कि प्रॉब्लम अभी तक नहीं सॉल्व हो सकी। ठीक हो गई। और क्या रीजन थी इसकी? हम्म क्यों कहा जाता है कि रैडक्लिफ अवार्ड जो था वो अनजस्ट? बहुत से हिस्टोरियंस ये भी क्लेम करते हैं कि माउंटबेटन ने प्रपोज किया था हाँ सर हाँ सारिल को कि आप बाउंड्री कमीशन को इंडियंस के हाँ फेवर में रखें, स्पेशली हिंदूज के फेवर में। हाँ, ये कहा जाता है कि माउंटबेटन जो है उसके पर्सनल रिलेशंस थे नेहरू फैमिली के साथ। ठीक है, कि उसकी अच्छे टर्म्स थे, तो जिसकी वजह से नेहरू के साथ अच्छे टर्म्स होने की वजह से ये जो आपका अवार्ड था इट वाज बायस्ड। ठीक है। तो और दूसरी दूसरी बात एक ये भी है कि ये जो पार्टीशन हुई थी, ये भी तो आपको पता है जल्दी में हुई थी ना। फिर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आप देखें तो पार्टीशन को उन्होंने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था। ये भी तो एक रीजन हो सकती है ना। जी ज़ारा, आप क्या कहेंगी इस बारे में? यस मैम, और इसके अलावा वो जो कश्मीर के ऊपर वो बॉर्डर लाइन की वजह से भी देयर वर लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल, लाइक लेटर ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हाँ 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 लाइक इन द आई थिंक गुरदासपुर में बॉर्डर लाइन विद इंडिया, हाँ। उसके अब ऊपर भी अब दूसरी दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि रेड क्लिफ के पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं था इस रीजन का, और लोकल लीडर्स के साथ इसको डिस्कस नहीं किया गया, पॉलिटिशियंस के साथ इसको डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है। और ये वाली ये जो बाउंड्री कमीशन की प्रोसीडिंग्स थी इसको बहुत सीक्रेट रखा गया था, और किसी भी प्रायर नोटिफिकेशन के बगैर इस अवार्ड को अनाउंस किया गया। और मैनी, अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये बात ठीक है या गलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैनी पीपल बिलीव दैट रेडक्लिफ जो था इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश इंटरेस्ट्स एंड बायसेस फेवरिंग इंडिया ओवर पाकिस्तान। इंडिया को फेवर किया गया। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे दे वर एक्यूज्ड ऑफ मैनिपुलेटिंग द बाउंड्री अवार्ड टू इंडियाज एडवांटेज। ठीक है। तो रेडक्लिफ अवार्ड जो था इट डिसरिगार्डेड द नेचुरल बाउंड्रीज सच एज रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, लीडिंग टू डिस्प्यूट्स। इट डिवाइडेड many communities, leaving some villages and families split between India and Pakistan. ठीक है। तो रैडक्लिफ अवार्ड, अब हमारे पास देयर वाज नो अदर ऑप्शन देन टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि दिस वाज द टाइम व्हेन ब्रिटिश वर लीविंग सब कॉन्टिनेंट। तो अगर हम इस अनजस्ट रेडक्लिफ अवार्ड को एक्सेप्ट ना करते तो इसका मतलब है हिंदूज की विशेष के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो जाता। हिंदूज तो पहले ही नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। जिस तरह की पार्टीशन हो रही थी, जिस तरह का ये अवार्ड था, जिस तरह की ये डिमार्केशन थी, बाउंड्री डिमार्केशन, तो ये तो वैसे ही जो था, इतना हमें वो कहते हैं ना लंगड़ा पाकिस्तान दिया जा रहा था। तो स्टिल अगर हम इसको ना एक्सेप्ट करते तो फिर इसका मतलब था फर्दर वायलेंस एंड फर्दर जो था डिस्प्यूट्स। ब्रिटिश ने अपने टाइम पे चले जाना था, और फिर परमानेंट सिलेवरी बाय द हिंदूज। ये एक अलग चैप्टर है कि होनी चाहिए थी पार्टीशन कि नहीं होनी चाहिए थी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड क्लिफ अवार्ड जो था इसकी इसमें ट्रांसपेरेंसी का लैक था। इट वॉज अ बायस्ड डिसीजन, making geographic and demographic inconsistencies have made it a symbol of injustice and a source of ongoing conflict in this region. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई जिना कंसीडर्ड, या वाई मैनी मुस्लिम्स कंसीडर्ड रेड क्लिफ अवार्ड एज अनजस्ट।
इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो एरियाज के जो अनजस्टली अवॉर्ड किए गए इंडिया को। अब देखिए कश्मीर का डिस्प्यूट, बाय गिविंग गुरदासपुर एंड फिरोजपुर टू इंडिया, कश्मीर की आपने बाउंड्री इंडिया को दे दी। अदरवाइज तो अगर ये एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, हमारे पास ये एरियाज होते, तो देर वॉज नो रीजन ऑफ द फाइट, ऑल दो प्रिंसली स्टेट पे झगड़ना ही था इन्होंने, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि ये ये डिस्प्यूट फिर थोड़ा हो सकता है इसका कोई डिसीजन जल्दी हो जाता। तो दिस अवार्ड हैज़ बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स अनजस्ट nature, which led to significant human suffering and long lasting consequences. So, with the Radcliffe Award announcement, powers were transferred to India and Pakistan. 14th August is celebrated as a day of independence for Pakistan and 15th August for India. तो डोमिनियन स्टेटस था दोनों कंट्रीज़ का, दोनों अपने अपने मुल्कों में आज़ाद थे और अपने अपने ऑटोनमस थे अपने अपने एरियाज़ में। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज गिवन एज एन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक के दोनों कंट्रीज़ अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर लेते तब तक अपने रूल्स को वो या अपने कंट्रीज़ को वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रूल कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इस पूरे जो हमारी टाइमलाइन है इसके अंदर से इफ़ वी लुक इनटू द सी पार्ट क्वेश्चन ऑफ कैम्ब्रिज एंड डी पार्ट क्वेश्चन ऑफ IGCSE एडेक्सल, तो आप ये देखें हमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे कैम्ब्रिज में आपको स्टेटमेंट आती है कि वॉज इंडिया पार्टीशनड इन 1947 बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू लीव। ठीक है, तो आप पहले स्टेटमेंट जो है उस पर डिबेट करेंगे कि हमने आज ये क्वेश्चन किया था ना क्लास में, हमजा, जारा, महक, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। जी मैम। that Yes, ma'am. yes, although the British desire to leave India was a factor, but it was not the sole cause for partition. ठीक है, ब्रिटिश जो थे वो सेटलमेंट चाह रहे थे थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, लेकिन अब आपने देखा कि ब्रिटिश का जो जनरल इलेक्शन, जो ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन हुआ था 1945 का, लेबर पार्टी केम इनटू द गवर्नमेंट, और यू नो लेबर पार्टी जो थी इट वाज अगेंस्ट कलोनियलिज्म। ठीक है, और दैट्स वाई, और उसके बाद आप देखें हिंदू मुस्लिम रिलेशंस का ब्रेकडाउन, डायरेक्ट एक्शन डे की सेलिब्रेशन जो कि लेड टूवर्ड्स द वायलेंस, दीज ऑल थिंग्स कन्विंस द ब्रिटिश टू लीव। हाउएवर अगर हम देखें, और दूसरा आप ये भी देखें कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी इट वीकेंड द ब्रिटिश and they were not able to maintain their colonial empire. Due to that, British granted independence to India and Pakistan. However, British government's desire to leave India, it was not the primary cause of partition. ठीक है, इसके अंदर फिर आप हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी की बात करेंगे, हिंदूज की सेल्फ रूल की डिमांड, मुस्लिम्स की सेपरेट होमलैंड की डिमांड, ओके, कम्युनल टेंशंस यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बात कर सकते हैं और रीज़न की, जो कि पार्टीशन की एक बहुत बड़ी रीज़न बनी, वो मुस्लिम लीडर्स का जो कंट्रीब्यूशन था, सच एज जिन्ना, रहमत अली, अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं, इसके अंदर अब हमने कौन कौन से इवेंट्स ऐड किए। हमने एक तो ये कहा कि ब्रिटिश जो थे दे वांटेड टू लीव इंडिया, बट दिस वाज नॉट द ओनली रीज़न। वो क्यों इंडिया छोड़ना चाह रहे थे? क्योंकि एक तो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, लेबर पार्टी कलोनियलिज्म की इतना फेवर में नहीं थी। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट। थर्ड, जो ब्रिटिश का फेलियर था टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इनटू द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड फर्दर
फर्दर जो था हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर फ्रॉम द सुपर पावर्स, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्शन डे हमने इसके अंदर ऐड किया, हमने इसके अंदर हिंदू मुस्लिम जो डिसयूनिटी थी उसको ऐड किया, कम्युनल वायलेंस को ऐड किया, हमने इसके अंदर रोल ऑफ मुस्लिम लीडर्स को ऐड किया। तो आप इसके अंदर रोल ऑफ मुस्लिम लीडर्स के अंदर आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन की, आप इसके अंदर गांधी जिना की एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि किस तरह से कायदे आज़म ने गांधी जिना टॉक्स की डिबेट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, कितना उन्होंने इंटेलिजेंटली इसको हैंडल किया, ठीक है। और वो गांधी भी बात को नहीं माने और मुस्लिम राइट्स पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो दिस ऑल इट लेड टूवर्ड्स कंक्लूजन में हमने क्या लिखा था ज़ारा? मैम उसमें हमने कंक्लूड किया था कि all the reasons are very important, but the most important would be the direct action day, because usme like it was like the direct push by the Muslims to show that it was a protest by Muslims to show that they have demands that have to be met, and the Great Calcutta killing showed that now a separate homeland had to be built, because that was the only solution to all the communal violence. गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो और इस टाइमलाइन के अंदर से हमें क्वेश्चन आ सकता है, एक और क्वेश्चन हमने किया था 1927 से 1935 के इवेंट का, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा इवेंट था? वो था 1927, यस। एक 1 मिनट यहाँ पर था, आई हैव प्लान्ड दैट क्वेश्चन एज वेल, यस। इन द years 1927 to 1935 the most important event in Pakistan's domestic history was Allama Iqbal's Allahabad address। बच्चों एक बात को ध्यान से अपने जहन में रखना है कि जब एग्जामिनर आपको टाइमलाइन देता है तो यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एन ओपन क्वेश्चन। वो आपको कह रहा है 1927 से 1935 के इवेंट्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो था वो अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस था। और अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस जो था जाहिर है वो इस डेट के अंदर आता है, 1930 में हुआ था। तो आपको अब एग्जामिनर 1927 से 1935 की टाइमलाइन दे रहा है। इसका मतलब है वो सबसे पहला इवेंट जो दे रहा है अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस, यू विल राइट द इम्पैक्ट्स ऑफ अल्लामा इकबाल्स इलाहाबाद एड्रेस टू प्रूव इट्स इम्पोर्टेंस। जैसे मैंने जो यहाँ पर लिखा है, मैंने ये लिखा है कि अल्लामा इकबाल कॉल्ड फॉर मुस्लिम्स टू वर्क towards achieving an independent homeland. Allama Iqbal acted as an inspiration to Muslims, providing a clear-cut objective. Allama Iqbal was an inspiration to other leaders such as Chaudhry Rahmat Ali's Pakistan. Ideas were based on the views which were expressed in Allama Iqbal's Allahabad address. So the impact of Allama Iqbal's Allahabad address, it was significant as it inspired a new generation of Muslim leaders including Muhammad Ali Jinnah to work towards the creation of Pakistan. अब आप देखो मैंने पहले अल्लामा इकबाल का, मैंने यहाँ पर अल्लामा इकबाल के इलाहाबाद एड्रेस को एक्सप्लेन नहीं किया। I didn't write that what Allama Iqbal said. I just have written the importance and the impact of Iqbal's Allahabad address. So in your C part question for Cambridge and D part question for Edexcel, you are not going to write or to explain the event. You have to write the impacts of that event. In this way, you can prove your answer. ठीक है? तो उसके बाद 1927 से अगर आपकी टाइमलाइंस, पहले आपने सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग विच इज सेड इन योर स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के बाद फिर जो भी आपकी टाइमलाइन होगी 1927 से 1935 तक है। 1930 का एक इवेंट आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब 1927 से आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्ट करना है, ठीक है। आफ्टर राइटिंग अबाउट Allahabad's address,
you will go towards the next paragraph जो कि आप start करेंगे. However, it's essential to consider the broader context of the time from 1927 to 1935. The Simon Commission, established in 1927, was also a significant event during 1927 to 1935 period. So, you may use the words of the statement in every paragraph, in the start of every point. ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चलता रहे कि ये बच्चा अपनी टाइमलाइन के अंदर की बात कर रहा है और वो अपनी टाइमलाइन को कनेक्ट कर रहा है विद द इवेंट, वो उससे बाहर नहीं जा रहा. ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927. इट वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट इवेंट ड्यूरिंग 1927 टू 1935 एज इट स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड बायकॉट अक्रॉस इंडिया. And these protests, it led towards the demand for self-rule, ultimately contributing to eventual demise of British colonial rule in India. मैंने पॉइंट बताया. अब मैंने ये नहीं बताया कि ये साइमन कमीशन क्यों इंडिया में आया, साइमन कमीशन क्या करने जा रहा था, इसकी क्या रिपोर्ट थी. मैंने डायरेक्टली आपको ये बताया कि साइमन कमीशन आया बट इट वाज बिटरली अपोज्ड, इट वाज बिटरली क्रिटिसाइज्ड बाय द इंडियंस. और ये जो क्रिटिसिज्म था, ये जो ऑपोजिशन थी, इट लेड टूवर्ड्स प्रोटेस्ट. ठीक है, और ये प्रोटेस्ट, ये डिमॉन्स्ट्रेशंस जो थी, इसने इंडियन सेल्फ रूल की डिमांड को और भी ग्रो किया. एंड अल्टीमेटली इट कंट्रीब्यूटेड टू द एंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर आपने टाइमलाइन को देखना है कि ये वाला इवेंट मैंने टाइमलाइन में से लिखा है, अगला इवेंट में कौन सा लिखने जा रहा हूं. तो जिनास 14 पॉइंट्स 1921 9. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिना के जो 14 पॉइंट्स थे, इसने मुस्लिम लीग को जो था वो फ्लोरिश किया. मुस्लिम लीग के जो इंटरेस्ट थे, जो मुस्लिम लीग की डिमांड्स थी, उसको और भी स्ट्रॉन्ग किया. ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन इन रिजल्ट ऑफ दैट पास हुई, विच ओपनली कॉल्ड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड. तो जिना के जो 14 पॉइंट्स थे, दे वर वेरी क्रूशियल इन शेपिंग द पाकिस्तान मूवमेंट. मैंने अब 14 पॉइंट्स बताए, मैंने उसकी इम्प्लीकेशन बताई, और साथ ही मैंने बता दिया कि हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट. इट लेड टूवर्ड्स लाहौर रेजोल्यूशन इन विच द डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड पुट फॉरवर्ड, और फिर इट शेप्ड द पाकिस्तान मूवमेंट, making it a vital milestone in the country's struggle for independence. अगला इवेंट मैं इसके अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का ऐड कर दूंगी. दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. It demonstrated the need for more radical solutions, such as the Pakistan movement, which would eventually lead to the creation of Pakistan. फिर मैं इसके अंदर, हाँ, अब आपने ये देखना है कि आपकी टाइमलाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ से हो रही है, कहाँ पे हो रही है. अब जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो इवेंट भी आप लाजमी डालें, और जहाँ पर एंड हो रही है उस इवेंट को भी ज़रूर ऐड करें. ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास इन बिटवीन काफ़ी इवेंट्स हैं तो आप उसमें से भी 3 to 4 इवेंट्स को ऐड करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन आप अगर स्टार्ट वाले इवेंट को भी ऐड करें, एंड वाले को भी इवेंट करें, और अंदर के कोई से 2 इवेंट आप उठा लें, तो इन दिस वे आपका क्वेश्चन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके अंदर यू आर नॉट गोइंग टू राइट मोर, आपने सिर्फ इसके इम्पैक्ट्स बताने हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गवर्नमेंट में. ठीक है, तो ऑल्दो इकबाल जलाबाद एड्रेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्रिएटेड द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर मुस्लिम प्रोविंसेस टू डिमांड फॉर ग्रेटर पावर.
तो कंक्लूड हम कैसे करेंगे? अब कंक्लूजन आपका आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि अलामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है ड्यूरिंग 1927 टू 1935। तो अब आप कंक्लूड कैसे करेंगे कि while Iqbal's Allahabad address was important event in Pakistan's domestic history, it is essential to acknowledge the significance of other events such as Simon Commission, 14 points, roundtable conferences, Government of India Act in shaping the country's progression. Nevertheless, Iqbal's address remains a cornerstone for Pakistani ideology, and its impact on the country's history can't be overstated. In this way, you have to attempt a C or D part question. I hope everything is clear. आज की क्लास हमारी काफ़ी एक्सटेंड हो गई है। मैं इंशाल्लाह मैंने रिकॉर्डिंग तो लगाई हुई है, अगर सक्सेसफुली ये लेसन रिकॉर्ड हो गया हुआ तो आई विल पोस्ट इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड टूडेज क्लास। बच्चे मिस तो नहीं करते होते, दे आर वेरी रेगुलर इन माई क्लासेस, बट वीकेंड है तो मे बी पीपल आर बिजी। दूसरा, कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक मैनी ऑफ द people they would be busy in shopping and doing other stuff. तो for their favor ये आज का लेसन जो है रिकॉर्ड है। एनी क्वेश्चन बच्चों? यस हमजा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू गॉट ऑल द इवेंट्स? जी मैम, बिल्कुल। ज़रा आप मुझे बताएंगे आज कौन कौन से इवेंट्स हमने किए हैं? हाँ जी मैम, हमने पहले रिवीजन किया था क्रिप्स मिशन के ऊपर, फिर हमने 1942 क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किया था, क्या थी जिसके क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? उसके ऊपर हमने बेसिकली हमने वो जापानीज इन्वेजन के बारे में बोला था, और यस, नेक्स्ट जो इवेंट क्या था? फिर हमने वो गांधी जी ने टॉक्स के बारे में बात की है। वेरी गुड। अब्दुल अहद, व्हाई गांधी टॉक्स वर फेल्ड? बस बिकॉज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट थे। गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू सेल्फ रूल का था और मुस्लिम्स का पॉइंट। यहाँ पर गुड गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स के लिए, तो आपने अपने पॉइंट्स की डेवलपमेंट के साथ आप इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब डिसएग्रीमेंट, जिन जिन पॉइंट्स पे डिसएग्रीमेंट था, आप अपने एक एक पॉइंट के अंदर उनकी डिस्कशन कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, एज अ रेफरेंस आप अपने क्वेश्चन में उसको यूज कर सकते हैं टू मेक योर आंसर मोर वर्दी। ओके Zara, Yes, ma'am. what event come next to Gandhi Jina talks? Ma'am, the Simla conference. Simla conference. Why Simla conference was failed? Ma'am, it was failed because Gandhi and Jinnah had different viewpoints. Because in the Simla conference, it was said that they would be like equal representations, whereas Jinnah pointed out that Very good, very the good, very good. small parties And they go to Congress. very good, Zabardast. महक, सिमला कॉन्फ्रेंस के बाद कौन सा इवेंट आता है बच्चे? Ma'am, I joined at 9 o'clock, so I think you spoke about the elections. हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब जो सिमला कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट, फॉर दैट इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1945 टू 46। अब इसके अंदर एक और टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि व्हाई मुस्लिम्स वर विक्टोरियस इन दिस इलेक्शन, हाउ दे वर एबल टू वन मोस्ट ऑफ द सीट्स, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम सीट्स। तो क्या रीजंस थी जिसकी वजह से अब मुसलमानों ने इतनी अच्छी मेजोरिटी के साथ विन किया ये इलेक्शन? So they had learned from the previous elections, because in the previous elections, the Hindus were victorious and the Muslims learned from that, and they also won through Jinnah's support. वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और इसके बाद का इवेंट क्या था अब्दुल अहद? मिस कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ताकि इंडिया में और स्टेबिलिटी को रीच किया जाए, सिविल वॉर को अवॉइड किया जाए। और ये Yes. 3 मैन डेलीगेशन थी बेसिकली जो कि इंडिया में आई थी वेरी गुड, कुछ कॉमन ग्राउंड हासिल करने के लिए। कॉमन ग्राउंड हासिल करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए इंडिया में। हमजा, इसके बाद का इवेंट क्या था कैबिनेट मिशन प्लान के बाद का? 3rd June प्लान। 3rd June plan. And after 3rd June plan, we have Radcliffe Award and the formation of Pakistan. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पाकिस्तान बना लिया है,
all the critical questions I have conveyed to you in my best honest way. Further, आपकी कोई भी queries हों, you can ask me, you can approach me through my YouTube channel, you can approach me through WhatsApp number, ठीक है. और बाकी आप लोग स्कूल में भी मेरे से पूछ सकते हो. तो आज हमारा सेक्शन ए जो है एडेक्सल का सेक्शन ए, उसमें मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कवर्ड. अब कमिंग जो हमारे 2 चैप्टर्स हैं, दैट वन इज़ अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जिना, चौधरी रहमत अली एंड अलामा इकबाल. वो चैप्टर आएगा, दैट इज़ वेरी इजी चैप्टर. और एक चैप्टर आपका आता है फॉर द इनिशियल प्रॉब्लम्स विच पाकिस्तान फेस्ड इन 1947. अब इन दोनों चैप्टर्स को इंशाल्लाह हम एक क्लास के अंदर ही कवर कर लेंगे. एंड आफ्टर दैट जो मोस्ट आपका डिफ़िकल्ट चैप्टर रह जाता है सेक्शन ए एडेक्सल का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम 1951 टू 1971. तो इंशाल्लाह हम उसको भी ज़रूर करेंगे. उसके क्वेश्चंस तो प्लान हो गए हुए हैं, बट जैसे जैसे हम रिवीजन करेंगे मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगी. तो आज के लिए फ्रॉम माय साइड दैट इज़ ऑल. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम. Yes, is there anything to ask? No, ma'am, everything's really clear. ओके. सलामत रहो, जीते रहो. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. हमारी मेहनत को जो है उसका, हमारी जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हमें उसका जो है अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें. आई होप सो. और मुझे आप पे पूरा एतमाद है. अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और कामयाबियों के बुलंदो बाला मुकामात पर फाइज करे. अपने वालिदैन के लिए आपको बहुत एक सदका जारिया बनाए, आपको अच्छा इंसान बनाए. एंड दीज आर माई प्रेयर्स फॉर यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ बच्चों. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Allah Thank you, Hafiz. ma'am. Allah Hafiz. Thank you.